going to study the fun they had. Before you read, the story we shall read is set in the future, when books and schools as we know uh, as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. The schools of the future means robot teacher. There will be no man to go in a school to study it. The student need to study at home itself. There was an alarm also. They need to study for regular hours. You can see these virtual classrooms also. You can see these moving e-text, this computer, keyboard, mouse. You can see it. So it is very difficult for those children who need to study with the help of the computers. In pairs, discuss three things that you like best about your school and the three things about your school that you would like to change. Write them down. Three things. But I don't think that those three things that I liked. I don't have that those three things. Uh, Have you ever read words on a television screen? Yes, we have read. Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? Yes, we will like because there will be millions of books. But at present when the books are not on the computers or television, we need to go to the library for every kind of books, but it will be easy for those children who will get all the e-books in the laptop only. Maggie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." Means this statement, for this statement, the question can be came that what the Margie has written on the date of 17 May 2157. So we need to underline this statement. Okay, it is very very important for all the children. It was a very old book. मतलब बहुत पुराना बुक था. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. मतलब क्या कि ग्रैंडफादर मार्गी के जो थे वो बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया कि एक टाइम था जहाँ पे बुक्स जो थे वो प्रिंट होते थे पेपर पे. अब they turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was absolutely funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to do on a screen. मतलब कि जिस तरह से वो पेजेस हमेशा पलटते थे इस कंप्यूटर वगैरह में, उस तरीके से वो पेज मूव ही नहीं होता था. वो
इस तरीके से मतलब वाइट वाइट नहीं दिखता था, पुराना बुक हमेशा येलो पिंकली कलर में दिखता था। हाँ, अभी मैंने यहाँ टोल्ड हिम ये दिख रहा है, हमें हमें कुछ देर बाद दिखेगा यहाँ पे क्या डैट, इस तरीके से दिखेगा आने वाला टाइम में। वैसे आज भी हो रहा है ऐसा। तो लेकिन जब मार्गी ने देख पढ़ा, जब वो बुक पढ़ी तो उसने देखा क्या कि मतलब जिस तरीके से वो बुक पलटती थी, मतलब करती थी, उस तरीके से हो ही नहीं रहा है। और पहली बार जब उन्होंने रीड भी किया, मतलब वर्ड जो था वहां पे वहां का वहां ही रहा, चेंज हुआ ही नहीं। ये भी दूसरा स्ट्रेंज उसने चीज देखा। अब देखो, गी said Tommy, what a waste. When you are through with the books, you just throw it away. I guess our television screen must have made a million books on it and it's good for plenty more. I would not throw it away. मतलब आज की डेट में क्या होता है, हम लोग अगर क्लास 9 पढ़ लिए, हम 10th में आ गए, हम क्या करते हैं, बुक लिए, बुक को 9th का सारा बुक लेकर के हम लोग कबाड़ी वाले को बेच दे देते हैं, यही काम करते हैं। लेकिन जब फ्यूचर में जो स्कूल आएंगे, वो जो बच्चे पढ़ेंगे, वो तो बुक थ्रो ही नहीं करेंगे, ये बात है। और ये कह रहे हैं कि क्या वेस्ट है। तो सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी ने बोला मेरे साथ भी यही हाल है। She was 11 and had not seen as many daily books as Tommy had. He was 13 years. मतलब क्या, टॉमी बड़ा है मार्गी से, मार्गी है 11 years की और टॉमी है 13 years की। टॉमी के पास ही हमें बहुत सारे टेली बुक्स रहते थे, लेकिन मार्गी के पास टेली बुक्स नहीं रहते थे। She said, where did you find it? मतलब मार्गी ने बोला तुम्हें कहाँ से ये बुक मिला है? हाँ? अब in my house, टॉमी ने ये बात बोला। फिर he pointed without looking because he was busy reading. मार्गी ने पॉइंट किया कि ये इतना बिजी है इस बुक को रीड करने में, आखिर ऐसा क्या बात है। इन दी एटिक, attic के जगह पे, attic means a place just below the roof used as a store room। मतलब जैसे कि अगर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आप कुछ भी अगर आप अपना रख रहे हो कोई भी बुक्स वगैरह, तो उसे आप ये भी कहते हो एटिक। तो वही उस जगह पे उसने कुछ अपना सामान रखे होंगे, वहीं से उसने लेकर के वो रीड कर रहा होगा बुक, और उसने बोल दिया मार्गी ने इन दी एटिक। व्हाट्स इट अबाउट, मार्गी ने पूछा कि किस के बारे में, कौन से टॉपिक के बारे में। टॉमी ने कहा स्कूल के बारे में। तीसरे बार में वो इसे भी स्ट्रेंज मान ली कि क्या ये स्कूल के बारे में कौन लिखता है। हाँ, वो तो मतलब नफरत कर चुकी थी स्कूल से, क्यों की थी वो भी रीजन पता चलेगा आगे। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. Why? क्यों हेट करने, वो पहले हेट की स्कूल को, अब वो तो और ज्यादा ही हेट करने लग गई। मैकेनिकल टीचर had been given her टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मतलब एक टेस्ट खत्म हुआ फिर से टेस्ट, उसके बाद फिर से टेस्ट, ऐसे ज्योग्राफी में। And she said been doing wars and wars until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector.
जब देखा कि ज्योग्राफी में टॉम मार्गी का मार्क्स बहुत गंदे आ रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मदर ने तो अपना सर एकदम परेशानी में आ गई और अपने सर पे हाथ रखने लग गई। फिर उसके बाद उसने उसे भेज दिया काउंटी इंस्पेक्टर के पास। अब देखो, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. मतलब वो काउंटी इंस्पेक्टर जो था उसका चेहरा एकदम ही गोला था, वो एकदम ही लिटिल मैन की तरह था, उसका चेहरा का कलर एकदम रेड था और वो अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स ऑफ टूल्स लेके आया था, साथ ही साथ डायल्स और वायर्स भी लेके आया था। उस समय में काउंटी इंस्पेक्टर का काम ही यही होता था कि रोबोटिक टीचर्स को ठीक करे। तो अब काउंटी इंस्पेक्टर का आगे हम रीड करते हैं। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. मतलब काउंटी इंस्पेक्टर आए, मार्गी को देख के थोड़ा स्माइल किए, घर में कोई भी बच्चा रहेगा तो कोई भी बड़ा स्माइल करेगा, और फिर उसे एक एप्पल दिया, हाँ, और फिर तब जा करके वो टीचर का काम जाके करना शुरू किए। Margie had hoped he would not know how to repair it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मतलब मार्गी ने सोचा क्या कि वो फिर से क्या करेंगे, उसे 1 मंथ के लिए ले जाएंगे अपने साथ काउंटी इंस्पेक्टर को, उन्हें नहीं मालूम रहेगा कि कैसे इसे ठीक करना है कैसे नहीं। हाँ, अब उसने यहाँ क्या देखा कि इन्होंने तो 2 मिनट में ही ठीक कर दिया इसे। अब वो एकदम ही परेशान हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, अब वो क्यों हेड कर रही थी मार्गी ये मैकेनिकल टीचर को, क्योंकि वो एक तो बहुत ही बड़ा था, ब्लैक कलर का था, अगली लगता था उसे, बिग स्क्रीन था जिसपे कि उसे हमेशा लेसन शो होता था और उससे हमेशा क्वेश्चन पूछता था, अब जो कि उसे बहुत ही गंदा लगता था। और the part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. मतलब क्या कि मार्गी ने जब उसे हर दिन होमवर्क मिलेगा और टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, उसे अपना आंसर्स को स्लॉट में डाल करके लिखना पड़ता था, पंच कोड्स में डाल के लिखना पड़ता था, जो कि किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा वो तरीका। अब she always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. एक ही बार 6 साल पे उसे पढ़ा दिया गया कि ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, इस तरीके से। हाँ, जैसे ब्लाइंड पर्सन होते हैं ना, उन्हें बताया जाता है कि ए है, तो फॉर एन एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है कि 1 डॉट लगता है, फिर बी कर रहे हैं तो 2 डॉट लगेगा, इस तरीके से। तो वही समझे पंच कोड में भी उसे एक ही बार बताया गया, बार बार नहीं बताया गया, लेकिन हम बच्चों को बार बार बताया जाते हैं। और जब वो क्वेश्चन पेपर और होमवर्क डाल सेंड करती थी, मतलब सबमिट करती थी, तब मैकेनिकल टीचर बहुत जल्दी उसे कैलकुलेट करके उसका फीडबैक बता देता था। Do you all imagine? क्या हो रहा है?
होता था, विच इज वेरी फील अगली, कितना जल्दी क्यों होता है, एक इंसान इतना जल्दी नहीं कर सकता. The inspector had a smile after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not a little girl's fault." मतलब काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला कि इसका कोई गलती नहीं है. मिसेस जोन्स उसकी माँ थी. मिसेस जोन्स was her mother, means Margie's mother. I think the geography sector was jeered a little too quick. मतलब काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला कि ज्योग्राफी सेक्टर जो था रोबोटिक टीचर का, वो ज़्यादा एज के लेवल पे आ गए थे, इसलिए दिक्कत हो रही थी मार्गी को पढ़ने में. उसके इसलिए मार्क्स कम आ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि लिटिल गर्ल का कोई गलती नहीं है, उसको पैट मत कीजिए, उसे डांटिए मत. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वो कभी कभी हैपन होता है. I have slowed it up to an average 10 years level. अब उन्होंने ये भी बोला कि मैंने उसका एज 10 years के लेवल पे डाल दिया है. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. मतलब उसका जो मार्क्स जिस तरीके से आ रहा था वो सेटिस्फाई करता है एक उस तरीके से. And he patted Margie's head. अब फिर से उसने पैट कर दिया. अब मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी डिसअपॉइंट हो गई थी ये चीज देख कर कि इन्होंने फिर से ठीक कर दिया. उस टॉमी का तो इन्होंने एक मंथ के लिए ले गए थे, मेरा तो लेके ही नहीं गए. She had been hoping they would take the teacher away altogether. वो अपने साथ एक मंथ के लिए ले जाएंगे, वो पढ़ाई से छुटकारा पा लेगी, ऐसा उसने सोचा था. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month between the history sector had blanked out completely. Okay. हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमी टीचर के साथ क्या हुआ कि वो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि टॉमी है, उसे पढ़ाने में ही दिक्कत हो रहा था. तो मतलब उसे वो जो हिस्ट्री के सेक्टर वाली जो टीचर थी, उसे लेकर के काउंटी इंस्पेक्टर लेकर के अपने साथ थे एक मंथ के लिए. उसने ये सोचा कि जैसा टॉमी के साथ हुआ वैसा मेरे साथ भी हो जाए, लेकिन उसके साथ वैसा कुछ हुआ नहीं. So she said to Tommy, "Why would anyone write about the school?" क्यों कोई एक स्कूल के ही बारे में लिखेगा? ऐसा मार्गी का बात था टॉमी से. Tommy looked at her with very superior eyes की तरह देखा उसे. Because it's not our kind of school. वो हम लोग की तरह मतलब फ्यूचर वाला जो स्कूल है उनका प्रेजेंट वाले स्कूल के जैसा नहीं है. तो उसने स्टूपिड भी बोला. This is the old kind of a school that they had hundreds of years ago. वो पुराना स्कूल था, 100 साल से भी बहुत पहले की तरह का स्कूल था. He added loftily, pronouncing the words carefully, centuries ago. Margie was hurt. टॉमी ने इस तरह का बात जब बोला कि वो बहुत ओल्ड स्कूल था, तो उसे अच्छा नहीं लगा. जब उसने वर्ड ये बोला सेंचुरीज अगो,
तब जाके उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. This can be came कि क्यों उसे अच्छा नहीं लगा. Because brother has said to him centuries ago. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, Anyway, they had a teacher. कुछ भी हो, उन्हें टीचर्स थे. मार्गी ने उस बुक को भी पढ़ा. You can see this picture also. They had a teacher. It was a man. वो एक इंसान था. So they had a teacher, but it was not a regular teacher. हाँ, उनके पास टीचर था, लेकिन वो कोई रेगुलर नहीं थे. It was a man. वो एक इंसान था. तो a man, how could a man be a teacher? कैसे एक इंसान टीचर हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man is not smart enough. ये मार्गी ने बोला कि एक इंसान कोई स्मार्ट नहीं होता है. Sure, he is. My father knows as much as my teacher. वो जरूर मेरे पापा होंगे जिन्हें मालूम होगा एक टीचर के जैसा. He know almost as much. I betcha. Betcha means but informal word. It is a informal word. But you, I am sure. Okay, it means that I am sure. Margie was thinking that I am the sure. Tommy was thinking, not the Margie. Margie was not prepared to dispute that. Margie prepared नहीं थे इसके लिए dispute करने के लिए. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में एक strange आदमी मतलब एक cruel आदमी आके मुझे पढ़ाए. तो टॉमी screamed with laughter. पहले तो वो हंसा, फिर बोला, You don't know much, मार्गी. तुम्हें नहीं मालूम मार्गी. The teacher did not live in the house. वो बच्चों के घर में आकर के नहीं रहते हैं. They had a special building and all the kids went there. मतलब मार्गी को टॉमी ने पहले तो वो हंसा, फिर उसके बाद बोला तुम्हें तो मालूम ही नहीं है कुछ मार्गी. फिर उसके बाद बोला कि टीचर्स कभी भी स्टूडेंट के घर में नहीं आके रहते थे. उनके पास अलग घर होता था. वो एक अलग से बिल्डिंग में जा करके सारे बच्चे मिल करके पढ़ते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. एक ही चीज पढ़ते थे. Sure, if they were the same age, वो सभी कोई एक ही एज के होते थे. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and adapt. Each kid has to be taught differently. मतलब मदर कहती है कि टीचर को हमेशा हर बच्चों से एडजस्ट होना चाहिए, उनका माइंड को फिट करके रखना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, इंडिविजुअली उन्हें पढ़ाना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है. खुद सोचो ना कि 100 लोग हो क्लास में और एक इंसान है जो कि टीचर है, उसे पढ़ानी है तो वो इंडिविजुअली थोड़ी ना पढ़ाएगा. हाँ, वो अपना एनर्जी थोड़ी ना लॉस करेगा एक बच्चे को पढ़ाने के लिए. वो 100 लोगों को पढ़ाने के लिए एक ही बार में पढ़ा देगा. Just the same, they did not do it. That was then. If you don't like it, you don't have to read the book.
टॉमी ने बोला कि अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम ये बुक नहीं पढ़ सकती हो। फिर I did not say I did not like it. मार्गी ने बोला मुझे मुझे नहीं। मार्गी ने बोला उसे जल्दी से कि मैंने ये नहीं बोला है कि मुझे ये बुक अच्छी नहीं लगी है। She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. उन्होंने हाफ बुक रीड कर लिया था और मार्गी की माँ ने बोला कि मार्गी स्कूल जाओ, स्कूल जाके पढ़ो। मतलब उसका स्कूल था कहाँ, उसके बेडरूम में ही था। उसे बेडरूम के पास आके पढ़ना होता था, फिक्स्ड आवर्स के लिए पढ़ना होता था। ये उसके लिए एकदम ही अलार्म डाल करके रखा हुआ था। एक्सेप्ट दी सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को भी पढ़ाई वो करता ही होगा, लेकिन उसका टाइम अलग कुछ और होगा। Now said Mrs. Jones ने बोला and it's probably time for Tommy too. मतलब टॉमी के लिए भी अब ये टाइम हो चुका है और मार्गी के लिए भी ये टाइम हो चुका है, अभी जाओ। माँ ने ये बोला। फिर मार्गी said to Tommy, can I read the book some more with you after school? स्कूल के बाद मैं ये बुक पढ़ सकती हूँ कुछ देर के लिए। तो मार्गी तो टॉमी ने बोला मे बी, शायद से तुम पढ़ सकती हो। ही सेड नॉनचैलेंटली, मतलब शो करने के लिए कि इंटरेस्ट नहीं है, इंथुसियाज्म केयरलेसली नहीं है, ये शो करने के लिए, मतलब उसे बैड फील कराने के लिए टॉमी ने उस तरीके से बोला मार्गी को। He walked away with whistling, the dusty old book tucked beneath his arms. आर्म्स के पास लाकर ये ओल्ड बुक को रख दिया और वो एकदम ही डस्टी बुक था। ऐसे whistling means लोग सीटी तो मारते ही हैं मुंह से, वही होता है whistling। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी फिर चली गई अपने स्कूल रूम में। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के राइट के तरफ में स्कूल रूम था। और एंड द मार्गी मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, वहीं पे मैकेनिकल टीचर ऑन थी, वेट कर रही थी उसका। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो हमेशा सेम टाइम पे होती थी कि केवल उस दिन को छोड़ के, सैटरडे एंड संडे। ओके, the mechanical teacher was flashing on the screen. आंखें भी खराब होती है हर दिन इस लैपटॉप के पास रहने से, होता ही होगा उनके साथ। Because her mother said little girls learn better if they studied at regular hours. माँ का कहना ये था लिटिल गर्ल के लिए कि अगर वो रेगुलर आवर्स के लिए पढ़ेगी तो वो उसके लिए अच्छा है, उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा। The screen was lit up. What's the meaning of lit up? बाद में बता दूंगी lit up का मीनिंग। And it said today's arithmetic lesson, it is on the addition of proper fraction. वो एक एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पे उन्हें पढ़ाया गया था उस दिन स्क्रीन पे। अरिथमेटिक का चैप्टर्स था, मीन्स मैथ्स। अरिथमेटिक
वो आता है जैसे कि अलजेब्रिक हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स, आपका वो लीनियर इक्वेशंस, ये आता है अरिथमेटिक में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर फ्रैक्शंस ये सब पढ़ाने के लिए अरिथमेटिक लेसन में है, वो तो मैथ्स में आएगा। तो प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। मैकेनिकल टीचर ने बोला कि इंसर्ट करो कल का होमवर्क को प्रॉपरली स्लॉट में डाल के। मार्गी डिड सो विथ अ साई, मतलब सैड हो करके उसने कर दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, उसने पुराने स्कूलों के बारे में हमेशा वो सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, तो उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जो थे उस समय की बात है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, मतलब हर जगह के बच्चे आते थे स्कूल में। एक क्लास रहता था, एक ही एज के होते थे सारे बच्चे, और आकर के कभी शाउट कर रहे हैं तो कभी लाफ कर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, एकदम मस्ती में रहते थे। लेकिन इस फ्यूचर वाले स्कूलों में इन्हें दिक्कत ही दिक्कत, ना किसी दोस्त से बात कर सकते, ना कुछ कुछ, एकदम दिक्कत ही दिक्कत। इसलिए स्कूल ऑफ द फ्यूचर सारे के सारे दुनिया के सारे बच्चे इसे हेट करेंगे, इस तरह के स्कूलों से। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, सारे बच्चे एक साथ बैठते थे, अपने दोस्तों के साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, मतलब टाइम खत्म हो जाने पे उन्हें अपने घर जाना होता था, स्कूल को छोड़ के एक साथ जाते थे। वो लोग 6 घंटे के क्लासेस होते थे और इनका पूरा दिन क्लास होता है। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक ही चीज पढ़ते थे। जैसे आज हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं तो ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, फोर्थ में थी तभी पढ़ चुकी थी फ्रैक्शंस। तो फ्यूचर का स्कूल हो या प्रेजेंट का स्कूल हो या पास्ट का स्कूल हो, हर जगह एक ही चीज सबको पढ़ाई गई है, एक ही ज्ञान सबको दी जाती है, और हमेशा उनसे क्वेश्चन क्लास में पूछा जाता है और होमवर्क उन्हें दी जाती है। एंड द टीचर वर पीपल, टीचर्स इंसान थे। मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश होती थी। When we and fraction 1/2 and 1/4, ऐसे। Maggie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. कैसे सारे बच्चे पुराने के समय के दिनों में बच्चे उस दिनों को एकदम ही प्यार करते होंगे। She was thinking about the fun they had. इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया है The Fun They Had. Okay. It is written by the person Isaac Asimov. It can be come in the paper also. किस तरह के टीचर थे वो, किस तरीके से काम करते थे, फ्यूचर में कैसे काम कर रहे हैं, पास्ट में कैसे काम किए, कौन होता था, इंसान होता था कि रोबोट होता था पास्ट में,